I have started the recording. Okay. So, yeah, good morning, all. Yeah, this is the third day, and this is the third session of our summer internship program. This is the summer school program that is run by Mechanical, Automobile, and Civil Engineering departments combinedly from ILM. You already heard about the 2 days. We are discussing about the topic, the 3D printing technology in manufacturing and infrastructure. So the first day, the session was from the external guest. That was the eminent speaker, and that was only the inaugural sessions. So they gave the overview of the 3D printing. He discussed in the what is the 3D printing, what is the application, what is the scope. But as usual, we started the session yesterday, and yesterday onward, we will be concluding the things one by one, and topic by topic. So I'll speak in Hindi and English, both language, such that कोई communications gap नहीं रहा, because most of the participants are from North, and they can easily understand the Hindi language. तो मैं दोनों mixed language use करूँगा बोलने के लिए. So the topic है हमारा 3D printing technology in manufacturing and infrastructure. So it started yesterday about the 3D printing technology in manufacturing sectors. The session was by Dr. Shatrughan Singh. शत्रुघ्न सर ने कल काफी कुछ बताया, उन्होंने डिटेल में बताया 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग किस किस एरिया में बन सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डू, व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, क्या क्या हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं. सो दैट वाज द फर्स्ट सेशन बाय द डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह सर. जब नेक्स्ट सेशन हो पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लाइक मेडिकल फील्ड में क्या मैन्युफैक्चरिंग होगा, लाइक इन मटेरियल फील्ड में क्या मैन्युफैक्चरिंग होगा, लाइक इन रोबोटिक्स एंड फर्स्ट रोबोटिक्स में क्या मैन्युफैक्चरिंग होना है. सो इट विल बी बाय द एमिनेंट स्पीकर. शिव शर्मा सर लेंगे, अंकिता अवस्थी लेंगे, अभिषेक सर लेंगे, नसीम अहमद सर, गौरव सर. दिस ऑल आर आर एमिनेंट स्पीकर्स. कुछ एक्सटर्नल्स आएंगे जो कुछ सब टॉपिक्स लेंगे. नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट टुडे. There are the summer program in two ways. One is the 3D printing technology manufacturing, and another is the 3D printing technology infrastructure. So today I'll discuss about the 3D printing technology in infrastructure. After onward, आज के बाद से manufacturing and infrastructure के सब टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे one by one. So I'll deal here कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आएगा, what kind of the topic, the later we will be going to discuss in the summer internship program, what kind of the example of the infrastructure. So just let's start, and before starting this, now I'm coming to the real topic. What is the day 3 session? So just I would like to introduce myself again. I'm Ranjan Kumar, and I'm assistant professor in civil engineering department, working as a head also. And here in this program, I'm a program leader also, along with Dr. Shiv Sharma sir. He's the head of department in mechanical and automobile engineering. Actually, program leader to Shiv Shari hai, but I'm assisting him. And along with our team members. So already we discussed in the first day. Now I'm here to discuss about the things, deliver the session, clarify the session. Going forward for the session is the 3D printing technology in infrastructure sectors. Before moving these things, just I want to discuss the things कि हम क्या क्या cover करने वाले हैं. What the things we have to discuss about this. So we will discuss first what is the 3D printing. Already 2 दिन से चल रहा है, but I will try to overcome from that point. I do not want to कि repeat पे repeat होता रहेगा कि every day I'll say 3D printing, definition of the 3D printing, how they can be used. We will try in each and every session कि 3D printing clear हो जाए कि what is the actual 3D printing और कैसे काम कर रहा है. So every day every speaker will tell you about this thing in a variation way. So I'll today also will try to clear the 3D printing. कैसे करेंगे, how it's invented, when it's invented, how this is working, where we can use. So this application, what is the futuristic technology in coming years? क्या 3D printing के बाद और भी है? Of course 4D printing अभी market में आ गया.
क्या 4D प्रिंटिंग ही एंड है? नो, नेवर, कभी हुआ ही नहीं है. द टेक्नोलॉजी इज नॉट नेवर स्टार्टेड एट जीरो और नेवर एंडेड. कभी हुआ ही नहीं. जब भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उससे पहले कुछ होता है. जब भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उससे पहले कुछ हुआ होगा. So similarly, right now, this is the burning topic. This is the most important and futuristic technology is the 3D printing. So we will discuss about the 3D printing, क्या टेक्नोलॉजी है, कब इन्वेंटेड हुआ, क्या एप्लीकेशन और किस किस एरिया में और आने वाले ईयर्स में क्या इसके स्कोप्स है. I will discuss this first step. In the second step, I'll discuss about the infrastructures. कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स क्या है, किसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है सेक्टर्स, इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं और उसका 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से क्या कोरिलेशंस है. In which infrastructure sectors we will use the 3D printing technology, how we can utilize, when we can utilize. So these all things, and at last, if it will get a time हमारे पास रहेगा, तो in this session we will take this quiz. Otherwise, in the next session, that will be 11:40 or 11:50 onward, we will cover there. So now, just moving forward, again I'm repeating thing कि this is the informatic session. Informatic sessions means we are not going to discuss the things कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी वर्क कर रहा है. इसके जो सब टॉपिक्स होंगे वो सेशन बाय सेशन हम लोग लेंगे, and they will discuss in that session how the technology working, how the internal part is working. Here is the informations where the 3D printing infrastructure sector is working. So now, again, the question is that what is 3D printing? पहले से ही कह रहे हैं, कई दिनों से कह रहे हैं कि this is the layer wise technology, this is the layer बन रहा है, of course बन रहा है, this is, but now I am introducing the two words. This is the rapid prototyping and additive manufacturing. Again, whenever we are talking about the 3D printing, तो हमारे दिमाग में होता है कि additive manufacturing भी वही बात है, but I am saying you कि 3D printing is the subset of additive manufacturing. This is, of course, if when we are saying the 3D printing, automatically understand कर लेते हैं additive manufacturing. But जब हम 3D printing की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए first word is the additive manufacturing, and then second word is the 3D printing. Then the question is that what is additive manufacturing? Exactly, the definition is same. The definition, जो set का definition होगा वही subset का होगा, but the subset is the consequential part. तो अब ये बात आती है कि क्या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या अभी आया है, नया वर्ड आया है क्या मार्केट में, कि लोग अभी से ही एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानने लगे या 3D प्रिंटिंग के बारे में? सो नो, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट द न्यू वर्ड. पहले लोग किसी मेटल में दूसरा मेटल मिला लेता था. ऑफ कोर्स दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स, व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, दो लिक्विड को मिला के करा लिया, whatever is there, but the term is the 3-dimensional way. अब additive manufacturing market में ये word, when it will come in the market, when we give the definition of additive manufacturing in 3D printing, 3D objects. मतलब कि additive manufacturing क्या है कि this is a kind of giving a nomenclature. किसी टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है, nomenclature दे रहा है. This is giving the appropriate name to describe the technology. और टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है? Maybe 3D printing. But the additive manufacturing का limitations क्या है? The model should be the 3D printing. लेकिन अब 3D printing अगर बनाएंगे तो क्या कोई जरूरी है कि मशीन से ही बनाएंगे? मान लो किसी ने अब जब पुराने जमाने में प्राचीन काल में जब आया होगा तो लोगों ने क्या होगा, मेटल को मिक्स किया होगा and they prepared themselves, हाथ से उसने कर लिया होगा, 3-dimensionally बना लिया होगा. तो क्या वो additive manufacturing नहीं है? लोगों ने क्या किया होगा कि खुद क्लियरली बना के अभी घर में हमने बैठा और कोई 3-dimensional कोई ऑब्जेक्ट्स बना लिया, तो क्या ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नहीं है? The additive manufacturing, whatever we are making in a 3-dimensional way, is called the additive manufacturing. And the 3D printing is that in which we are making a model of in a 3-dimensional way. इतना आसान तो है नहीं कि एक साथ डायरेक्ट 3-dimensional way बना लेंगे. So this is a kind of the successive layers of the material. So I hope the word is the 3D printing technology and additive manufacturing. The things is clear right now. Again, if I'll say
कि 3D प्रिंटिंग क्या अभी तुरंत मार्केट में? नो, बहुत पहले, लाइक इन 1884, सम एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, वो एग्जाम्पल्स भी नहीं ले रहा हूँ जिसमें ईयर्स मेंशन नहीं है। इन 1884 हॉट मेटल टाइप टेस्टिंग हुआ। हॉट मेटल्स को क्या क्या मिला दिया और प्रिपेयर्ड कर लिया, बट माइट बी वो 3 डायमेंशनल होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, but that was a kind of the additive manufacturing, but that was not in the 3 dimensional way, so we can say, but now it's a 3 dimensional. इसके बाद क्या हुआ? इंजेक्ट प्रिंटिंग आया 1950 में, 1950, again technology is coming forward. then in 1969 लेजर प्रिंटिंग आया, लेजर से प्रिंटिंग होने लग गया। in 1991 डिजिटल प्रिंटिंग होने लग गया। नाउ द डिजिटल तो कॉइन्स आने लग गए, अब बिटकॉइन्स एंड दिस एग्जांपल्स आर इनविजिबल वे में आने लग गया। So when we are talking about the 3D printing, IoT, बहुत लंबा, काफी, this is the very long things, upcoming futuristic technology है, अंत नहीं है इसका। So 3D printing, now the 3D printing started when? कब आया? कब हमने इसको 3D printing word बोला? So now I'll just start the things about the history of the 3D printing. I'll not give in the detail because this is the new session. So I'm discussing these things. बार बार ये discussions नहीं होगा किसी भी sessions में, but I want to clear the things. Now the history started in 1980s में, उनको patent मिल गया था. You know, on the screen you can see the chalk hole. This is the father of 3D printing. इन्हीं ने स्टार्ट करा था और सबसे पहले इन्होंने लिथोग्राफी मॉडल बनाया था, and that was the 3D object digital data, and the season started from there. तो 3D प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया वर्ल्ड, बट ऐसा हुआ नहीं कि 3D प्रिंटिंग उसने स्टार्ट कर दिया और 3D प्रिंटिंग मार्केट में बिल्कुल आ गया, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा, और हो भी नहीं सकता। इट विल टेक मोर टाइम। सो व्हाट द ईयर टू ईयर व्हाट वी हैव, सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग हियर नाउ ईयर बाय ईयर कि 3D प्रिंटिंग कैसे कैसे मूव किया एंड हाउ इट विल कम in the year. See here on a screen you cannot read because the format is a very, you know, the small size, but I'm trying to discuss the things as a highlight way. So in 1986 already I discussed that the Hull term coin kara, and this is the stereolithography, and this is he patented is a new system 86, in fact 84 mein aaya, 86 mein kar liya. Then the year by year we are just not coming every year, but we are pointing out that years which is the very important. Like in 1992, this is then the second step. The first stereolithography cleared bana. This is called the SLA. That was in the 3D system. बड़ा नई बात थी 1992 में 3D system से कोई बन जाए. That was not a very easy task. Then again the things came in the medical field. Organ बनाने लग गए यार, 3 dimensional organ बनने लग गए. Bladder is created with the patient cells. Patients के सेल से organ बनाने लग गए लोग. मतलब मेडिकल फील्ड में ही पहले एंट्री स्टार्ट हो गया. कितना कठिन काम है. This is a very, I mean, इनोवेटिव है. 1999 में न्यूज में भी नहीं आ रहा था, हम लोग समझ भी नहीं रहे थे कि ये आ रहा है 3D प्रिंटिंग की न्यूज. Nobody was there, और तब भी organ बनाने लगे. This means that there are little chance of the organ being rejected by the body. ऐड कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं. Now in 2002 किडनी बन गया, किडनी बना लिया, उसमें ब्लड ऐड कर लिया, डाइल्यूटेड यूरिन एनिमल मोल्ड का ये करके चेक कर लिया. In 2002, now the 2006, this is the year we can highlight. कि इस ईयर में क्या हुआ, पहली बार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मामले आ गए. एंड एज पर आवर टॉपिक वी हैव टू स्टार्ट 2006 कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्शन स्टार्ट, जो 2006 आप पढ़ोगे बताएंगे अभिषेक सर, बिल्कुल इसके हार्डवेयर के बारे में बताएंगे, 3D प्रिंटिंग के बारे में. 3D प्रिंटिंग इज इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है. और शत्रुघ्न सर ने कल बताया भी था कि वी आर मेकिंग ऑल द थिंग्स, वी आर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स बनाते रहते हैं हम लोग, 3D प्रिंटिंग से बनाते रहते हैं. वो क्या होता है, वर्कशॉप करते हैं, स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं. तो अभिषेक सर इज मेनली ही इज द इंचार्ज, ही इज हैंडलिंग दिस थिंग्स. तो अभिषेक सर का जब सेशन आएगा, ही विल डिस्कस ऑल द, यू नो, ऑल द हार्डवेयर थिंग्स ऑफ द 3D प्रिंटिंग.
सो बताएंगे क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे करते हैं, कैसे ट्रांसफर होता है. सो इन 2006, जैसे आई एम कमिंग टू द पॉइंट, इज बिल्ड एंड अलाउ फॉर यू नो द कस्टमाइजेशन. 2006 में कस्टमाइज्ड हो गया इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है कि कोई भी छोटा छोटा चीज हमने बनाना स्टार्ट कर दिया. पहले छोटा चीज से बनाया, फिर बड़ा बना लिया. सपोज हमारे घर में क्या है, कप बना लिया. घर में क्या है, चेयर बना लिया छोटा साइज का. घर में क्या है, सामान, कोई किचन का सामान बना लिया. क्या कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए? क्या बना लेंगे, कुदाल बना सकते हैं, हल बना सकते हैं, आप हसुआ बना सकते हैं, मतलब राव बना सकते हैं, है ना. कई कई है जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा. यहां से लेके आगे तक बढ़ते जाएंगे तो लोगों ने तोप तक बना लेंगे. कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर्स में नहीं स्टार्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग. सो द मैन्युफैक्चरिंग वर्ड इज नॉट कंसाइज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. तुम किसी भी सेक्टर्स की बात करो, आप किसी भी सेक्टर की बात करो, द मैन्युफैक्चरिंग वर्ड इज कम. हम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा? क्या एक घर बनेगा, घर के अंदर सामान नहीं बनेंगे? एक इंडस्ट्रीज की बात करें तो क्या कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे? किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या करेंगे, सीधे प्रिंट करके एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ा कर देंगे? नो. उसमें छोटे छोटे पार्ट होंगे, हर एक मशीन बनाएंगे, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे. सो वट एवर वी आर सेइंग अबाउट द सेक्टर्स, कोई भी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इज द देयर. बट मीनवाइल देयर इज अ सिंगल वर्ड इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. एक का कंपोनेंट बना लिया. सो इन 2006 द मैन्युफैक्चरिंग विल कम एंड वी आर एम्फसाइजिंग दिस टॉपिक. 2008 में टांग वांग बनने लग गए लोगों के, लिम्स बनने लग गए. आर्मी में आर्मी के लिए बनना स्टार्ट हो गया, ग्लव्स बनना स्टार्ट हो गया. सो 2008 में भी मेडिकल के फील्ड में आ गया. 2009 में बायो प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया. नाउ द पहले तो वो छोटा छोटा बनता था. नाउ द टर्म इज कम द प्रिंटिंग. जैसे हम लोग प्रिंटिंग मशीन में पेपर प्रिंट करके निकाल लेते हैं, वैसे ही सिमिलरली द प्रिंटिंग वाज स्टार्टेड. पेपर दे के निकालना स्टार्ट जैसे करते हुए ऐसे बायो प्रिंटिंग वर्ड हो गया. अब प्रिंटिंग का ये मतलब नहीं है कि इधर से देंगे और उधर से बायो प्रिंटिंग निकल जाएगा, इधर से सोना देंगे और उधर से कान की बाली बन के निकल के आ जाएगा. दिस इज नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है वर्ड, एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं है टेक्निकल वर्ड. या ऑफ कोर्स दिस इज टेकिंग द लेस टाइम. बहुत कम टाइम में क्रिएट कर लेंगे अप्रोप्रिएट वर्ड से, जितने भी जितना टाइम लगता है. अगेन इन 2011 द प्रिंटिंग सर्विसेज बहुत ही मार्केट में तेजी से निकल गया. एंड 2011 इट विल कम इन द गोल्ड मार्केट, इट इज कम इन द सिल्वर मार्केट. जितने भी ज्वेलरीज मार्केट है उसमें आ गया. 14 के गोल्ड बनने लग गया. So in 2011 that came in the market. Even that this is, we can say this is the part of the manufacturing. 2006 से मैन्युफैक्चरिंग की कहानी स्टार्ट है. 2012 में जो मेन वर्ड आया 3D प्रिंटिंग प्रोसेसेस, दैट विल कम इन द प्रॉपर वे. कि हाँ, जिसे लोगों को लगने लग गया कि हाँ वो क्या है 3D प्रिंटिंग. सो अल्टरनेटिव 3D प्रिंटिंग प्रोसेस वेयर इंट्रोड्यूस्ड एट द एंट्री लेवल ऑफ द मार्केट इन 2012. लोग समझने लगे ओ ये है, अच्छा यही 3D प्रिंटिंग है. देखने लग गया. लोगों को पहले लगा कि वो प्रिंट करने वाली पेपर प्रिंटिंग वाली मशीन होगा जिससे वो 3D वे में डायमेंशन निकलेगा. दिस इज नॉट लाइक दैट. सो इन 2012 इवन दैट, अभी भी तुम जहाँ से पूछो, नॉर्मल लोगों से आप पूछिए तो दे वो नहीं बता पाएंगे. 3D प्रिंटिंग का मतलब ये समझ रहा हो कोई प्रिंटिंग मशीन होगा जिसमें हम पुट करेंगे और सीधे इस टाइप से निकल जाएगा, पेपर प्रिंटिंग टाइप का. सो इन 2012 द एरा केम एज अ 3D प्रिंटिंग और मार्केट में आ गए. बट इवन दैट इन 2020 आफ्टर 8 years अभी भी न्यू है. कितने जगह हो रहा है? इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, बहुत माइन्यूट लेवल पे. एक्सपर्ट की कमी है, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई नहीं हो रहा है. अभी हम लोग 8 साल के बाद वर्कशॉप कर रहे हैं, समर स्कूल कर रहे हैं, इस पे लोगों को समझा रहे हैं. इन 2040 new era came in the revolution. This is the last point. This is the 2014. Actually we stopped here 2014 क्योंकि 2014 के बाद ना मार्केट में बड़ा नया वर्ड आया, स्टार्टअप. हालांकि इनफैक्ट ये 2008 में स्टार्ट हो गया था जब रिसेशन आया था. कि 2008 में ही स्टार्टअप स्टार्ट हो गया था. सारे जितने ओला ओला ये सब देख रहे हो, ये सारे स्टार्टअप पे स्टार्ट हो गए थे 2008 में. रिसेशन में लोगों के दिमाग में आया और स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप इन टर्म्स ऑफ 3D प्रिंटिंग. 2014 पे पिक पे आ गया था कोई भी स्टार्टअप. 3D printing was also in the peak. Even that हम कह रहे हैं, सिर्फ hypothetically I am saying that at 2014 the 3D printing was on peak. But नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी लोग नहीं जान रहे, कहाँ समझ रहे हैं. So this is
all the history about the the 3D printing. And I thought I strongly believe that there is no confusion till time to what is the history of the 3D printing, what is the 3D printing, what is the additive manufacturing, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब हुआ, एंड व्हाट इन द फील्ड, वेयर इज द फील्ड, किस में हम लोग 3D प्रिंटिंग यूज कर सकते हैं. 3D प्रिंटिंग इज नॉट लाइक अदर प्रिंटर. 3D प्रिंटिंग इज अ काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी time compared to traditional way. So the till time till slides just discussed about this thing. Now again the question is how the 3D printing working. ये तो लाइव देखो तो ज्यादा मजा आता है, बट ऑन द पिक्चोरियल व्यू वी कैन जस्ट डिस्कस द थिंग्स हियर, कि ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब हार्डवेयर में बताएंगे अभिषेक, दे विल डिस्कस इन द डिटेल एवरीथिंग. जस्ट दिस इज ओनली द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्लाइड, एक स्लाइड के कंटिन्यूएशन में आ जाए ताकि आप अंडरस्टैंड कर लो, इसीलिए हमने रखा है. So 3D printing वर्क क्या करेगा, इन द 3 सेक्शन यू आर सेइंग, यू कैन सी हियर, दिस इज यू कैन विजुअलाइज हियर. यहाँ क्या रखा है कि एक 3D इमेज बनाया, इस पे क्या क्या हमने कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने प्रिंटर को सेंड किया, और यहाँ पे क्या किया, 3D प्रिंटिंग ने इसको प्रिपेयर करके हमें बना दिया जैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए. टाइम लेस लगा. नाउ अब बात क्वेश्चन ये आता है कि क्या 3D प्रिंटिंग क्या वैसे ही प्रिंटिंग एक है कि एक प्रिंटिंग मशीन एक टेबल पे रखा रहेगा और ऑटो कैड सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहेगा, वो काम करेगा? क्या 3D प्रिंटिंग सिर्फ मशीन है, क्या रोबोट नहीं है? बट क्वेश्चन इज दैट कि हाँ ऑफ कोर्स 3D प्रिंटिंग इज मशीन है. 3D प्रिंटिंग क्या है, एक सिस्टम है. 3D प्रिंटिंग क्या है, रोबोट है. रोबोट इज ऑल्सो यार काम करेगा. 3D प्रिंटिंग खुद उठ के जाएगा. अभी बताएंगे जब हम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. अदरवाइज तुम 3D प्रिंटिंग को एक CNC की तरह समझोगे कि हाँ CNC रखा हुआ है, वहां पे आदमी जैसा खड़ा है बड़ा सा, और उसमें हमने प्रोडक्ट बनाया लाइक दैट. बट 3D प्रिंटिंग इज नॉट लाइक दैट कि CNC जो धक्का मार के कहीं से कहीं नहीं ले जा सकते, हैवी अमाउंट है, वैसा नहीं है. 3D प्रिंटिंग हमारी तरह मूव करेगा, चलेगा, एंड इट विल वर्क इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर किसी घर में छोटा जगह पे नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत लंबा सा काम करना पड़ेगा. सो हियर द नाउ I'm just about to start about the civil infrastructure के टर्म में जाने वाले हैं. And my topic is today to discussing the infrastructure, not in the manufacturing. So my focus is that in the field of infrastructure, जब भी infrastructure की बात करते हैं तो civil infrastructure की बात आती है. Automatic understanding है, रोटी कपड़ा एंड मकान की बात आती है. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, घर बनाने की बात आती है. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर, रोड बनाने की बात आती है. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, ब्रिज बनाने की बात आएगा, मेट्रो, रेलवे, जितने भी है, टनल, ये सब बनाने की बात आती है, तभी तो होगा. और ये छोटा सा तो है नहीं कि प्रिंट करके निकाल लिया, तो ये कम टाइम लेगा, कम टाइम में बनेगा, इसीलिए 3D प्रिंटिंग यूज करेंगे. सो नाउ हियर द सॉफ्टवेयर जो बोला, ये जब हम ऐसी जो पिक्चर हमने अभी दिखाया, चीज को नहीं दिखा सकते, वी कैन नॉट से कि हाँ ये है ऐसे है. तो जो सॉफ्टवेयर जो ऑटोकैड हम लोग यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं जनरली हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, सॉलिड वर्क भी यूज करते हैं, बट ऑटोकैड इज द प्रोसेस. लेकिन जब हम सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम काफी अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. लाइक ऑटोकैड इज फॉर ड्राफ्टिंग, उसमें भी हम लोग कर रहे हैं अभी, ऑटोकैड ड्राफ्टिंग के लिए करेंगे. सिमिलरली स्टैट प्रोडक्ट डिजाइन एनालिसिस के लिए, प्राइमा वेडा करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए. दिस इज द टॉपिक. रोड के लिए एमएक्स रोड करेंगे, सैप है. जो लोग सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उनके लिए बहुत ही मजे की बात हो जाती है, ये होली दिवाली की बात हो जाती है कि अच्छा बात, काफी हैप्पी हो जाता है वो कि क्या है वो, मतलब अभी किसी इस सॉफ्टवेयर पे कोई वर्कशॉप, इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है. दिस इज नॉट द इजी, बट हियर आई एम फोकसिंग ऑन दिस वन, दिस सॉफ्टवेयर, रैबिट स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग. इस सॉफ्टवेयर पे हम लोग, मैं फोकस कर रहा हूँ कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और इस समरी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो वी विल टॉकिंग अबाउट द रेविट स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग. जो ऑटोकैड की बात कर रहे हैं, वहां पे हम BIM की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं. और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के हेल्प से 3D प्रिंटिंग करेंगे. सो मिस्टर विल्सन विल टेक अ वन फुल सेशन फॉर द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एंड 3D प्रिंटेड हाउस. एक पूरा फुल सेशन लेंगे. दे विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन डिटेल, कैसे BIM काम करेगा, कैसे 3D प्रिंटेड हाउस होगा. In detail, how the printer will be work there. So now I'm just moving forward. मैं forward होता हूँ, and just coming to the things about infrastructure. Now, before infrastructure,
I do not want to discuss in the detail these things, but already discussed the what is the application of the 3D and the filter area. सबने हम कर दिया, कई दिनों से चल रहा है, परसों से चल रहा है यही कि किस किस फील्ड में कर सकते हैं. कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए बना सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं, मैट बना सकते हैं, फॉसिल्स बना सकते हैं, फॉरेंसिक बनते हैं, मेडिकल में करेंगे, हेल्थ केयर, एयर स्पेस, एविएशन, कहाँ नहीं करेंगे, एजुकेशन, सब जगह. दिस इज द लिस्टेड इन है. लेकिन आई ट्राई हियर टू कैटेगराइज दिस थिंग्स, टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट. आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज माई टॉपिक इज द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मैं 3D प्रिंटिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं. सो इन द 3D इंफ्रास्ट्रक्चर्स वी आर एंटरिंग नाउ, वी कैन से टिल दिस स्लाइड कि एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां काम करें, बढ़ते जा रहे हैं. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द पार्ट्स ऑफ सेक्टर्स. So at the last point, this is the application of the 3D printing is in 360-degree way for all the categorized sectors. Sectors क्या हो सकता है? Manufacturing sectors है, medical sectors है, healthcare sector, education sector है, manufacturing sectors है, बहुत commercial sectors है, agriculture sector है, industrial sectors है, energy sector है, बहुत सारे sectors है. So इस categorized कर रहे हैं sector को. So before the saying about the infrastructure, just I want to discuss the things now, what is sector and where the 3D printing works. Actually, now till date, till slide, आपको 3D printing के बारे में पता चल गया कि what is the 3D printing. That was the step 1 of my session. Now we are entering in the step 2 my session. What is the sector? What is the infrastructure sectors? And in which infrastructure sector the 3D printing will be work and how it will work. So now the second part of the session is now going to start. Yesterday, one participant was the Sweta Yadav. She was asking about the tertiary sectors. That's why I just added this slide कि clear हो जाए किसी को भी. Now, the sectors word का मतलब है economic sectors. कोई भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो economically growth के लिए ही कर रहे हैं. So sectors are distributing in this 4 way: primary, secondary, tertiary and quaternary. ये 4 sectors में हम लोग बांटते हैं. And this is the sectors of the economy. हर एक सेक्टर में क्या क्या एग्जाम्पल्स है इसके सामने है. सेक्टर्स क्या है? कोई भी सेक्टर्स क्या है? वी कैन से इकोनॉमिक सेक्टर क्या कि बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी और इंटरप्राइजेस. किसी भी जगह हम इकोनॉमिक्स वर्ड ऐड करेंगे वो आ जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड द सेक्टर्स. तो हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर की नीड क्या है, फैसिलिटीज क्या है? अगर मैं 2 वर्ड पे ही फोकस्ड करूं, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, तो फिजिकल स्ट्रक्चर्स क्या होगा? हम कहां रहेंगे. फैसिलिटीज क्या होगा? हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारी क्या सेवाएं होगी, हमें हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें इंटरनेट फैसिलिटीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा. स्ट्रक्चर्स में फिजिकल स्ट्रक्चर्स, हमने एक स्ट्रक्चर्स ऐसा बनाया जहां पे रह रहे हैं, एक ऐसा बनाया जिस पे हम सो रहे हैं. अब हमने इसके फैसिलिटीज नीड के लिए, खाने पीने के लिए मनी कहां से आएंगे, मैन्युफैक्चर्ड करेंगे, कैसे करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करके घर में रख लेंगे, उससे हो जाएगा? नहीं, वी हैव टू सेल इन द मार्केट. मार्केट में सेल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लोग चाहिए, पीपल चाहिए कि या कुछ इससे करेंगे. तो जो सेक्टर्स को बांटा गया है इसी कैटेगरीज में, वो 4 कैटेगरी में है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरली. अब मैं डिटेल में बताऊं कि प्राइमरी सेक्टर्स क्या है. कि प्राइमरी क्या है? कोई भी फर्स्ट चीज जो भी है, लाइक एग्रीकल्चर. हमने एक कोई राइस कल्टीवेट किया, दिस इज द फर्स्ट थिंग. लेकिन राइस को चावल में बदल देंगे, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज द सेकेंड स्टेप. दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर्स, मतलब फिनिश्ड गुड जिसको बोलते हैं. सो प्राइमरी सेक्टर्स में क्या है? हमने फिशिंग किया, मछली लाया, अब मछली का अचार बना के मार्केट में भेजेंगे. तो मछली से लेके अचार मछली का बनाएंगे अगर पिकल्स, तो दिस इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग. एंड उसको मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर्स. और फिर उसको क्या करेंगे? मार्केट में सेल करेंगे. दिस इज कॉल्ड व्हाट? द टर्शियरी सेक्टर. अब क्वाटरनरी क्या है? अब इससे भी बेटर मछली कैसे बनाया जा सकता है? तो उसको भी सोचने वाले के लिए एक बिठा के रखेंगे कि तुम सोचते रहो कि और इससे बेटर कैसे कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द क्वाटरनरी सेक्टर. तो 4 स्टेप्स है.
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनी। तो प्राइमरी क्या है? रॉ मटेरियल्स, 3D प्रिंटिंग, रॉ मटेरियल, 3D प्रिंटिंग में कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। 3D प्रिंटिंग बनाने के लिए, 3D प्रिंटिंग से प्रोडक्ट बनाने के लिए वी हैव टू नीड द रॉ मटेरियल्स, वी हैव टू कवर द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल मे बी प्लास्टिक, रॉ मटेरियल मे बी मेटल, रॉ मटेरियल सकता है। दिस इज अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। सो रॉ, नाउ द सेकेंडरी प्रोडक्ट की बात करें, फिनिश्ड गुड। तो फिनिश कैसे करें किसी चीज को बना के? इसीलिए ये जो सेकंड पे मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, सो मैन्युफैक्चरिंग इज कमिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर में और क्या होता है? यूटिलिटीज एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग मैंने पहले ही बनाया कि सामान वान तो बना लेंगे, रखेंगे कहाँ? घर चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग बना के क्या करेंगे? रोड पे छोड़ देंगे? नहीं, कहीं फेंक देंगे। रोड पे भी रखोगे तब भी तो रोड बना के देंगे। कहीं भी रखना है, वेयर यू हैव टू कीप, कहीं भी। छोटा सा घर बनाओ, बड़ा सा घर बनाओ, गोडाउन बनाओ, जो भी बनाओ, it's a need required of the infrastructure. It's a need to make the structures. Structures may be in terms of house, structure may be in terms of rooms, infrastructure may be in terms of godown, structure may be in terms of road, maybe ब्रिज के नीचे, ब्रिज बना दिया उसके नीचे आ गया, तो ब्रिज तो बनेगा ना। रेलवे स्टेशन के नीचे रहता है लोग, तो बनेगा तब तो। So these three terms is the secondary sector: manufacturing, utilities and construction. So मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल अलग पार्ट चल रहा है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। आई एम हियर टू द पॉइंट्स, यूटिलिटीज एंड कंस्ट्रक्शन। सो ये यूटिलिटीज और कंस्ट्रक्शन, ये दोनों मिला के हमने वर्ड बोला इंफ्रास्ट्रक्चर। सो नाउ आई एम सेइंग दैट द 3D प्रिंटिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग, एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि कंस्ट्रक्शन में क्या काम है उसके। और कंस्ट्रक्शन में भी हाउस, रोड, ब्रिज, टनल, रेलवे, मेट्रो, में भी क्या पाइपलाइन। यूटिलिटीज मतलब इलेक्ट्रिसिटी और गैस की सप्लाई, घर में गैस आएगा, उसके लिए पाइपलाइन बनेगा, कौन स्ट्रक्चर करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। घर में पानी आएगा, उसके लिए क्या चाहिए? पाइपलाइन चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज द पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बनता रहेगा। सो नाउ हमारा जो समर स्कूल है इज टोटली बेस्ड ऑन द सेकेंडरी सेक्टर्स। हम सेकेंडरी सेक्टर्स पे समर स्कूल ले रहे हैं। हम लोग मार्केट में क्या सेल कर रहे हैं, टर्सरी सेक्टर ये नहीं बता रहे हम लोग। हमारा मार्केट में क्या मोल भाव है हमें नहीं उतना पता। वी विल ट्राई कि कितना स्कोप चल रहा है, बट स्टिल वी आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग्स, सेकेंडरी सेक्टर्स। अगर एक वर्ड पे बोलता तो ये भी होता कि 3D प्रिंटिंग इन सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन ये इकोनॉमिक के वर्ड हो जाते हैं, इंजीनियरिंग के वर्ड नहीं होते। अब मुझे नहीं लगता टर्सरी एंड क्वार्टरनरी बताने की जरूरत है। सो क्वार्टरनरी ये जो लिखा है, रिटेल, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द कम्युनिकेशन सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे हम लोग? सॉफ्टवेयर सेल करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर सेल करने से क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। रियल एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हॉस्पिटैलिटी या लेजर, टूरिज्म, कोई आया बाहर से, कहाँ रहेगा वो? होटल में। किस पे बैठेगा वो? रेलवे में। कैसे आएगा? एयरपोर्ट पे। दिस ऑल द रिक्वायर्ड, दिस ऑल फॉर ऑल दीज थिंग्स we require the infrastructure. So infrastructure word is everywhere. So अगर आप इसमें से एक मैन्युफैक्चरिंग वर्ड को हटा दो, सेकेंडरी से और क्वार्टरनी तक जाओ, तो सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी से लेके नीचे तक आएंगे आप, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। और हर एक इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग वर्ड होगा। कोई 3D किसी ने बस बनाया तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? बस स्टॉप। The 3D is bus is what? Manufacturing. A bus stop is what? Infrastructure. So these are the correlated. So now I hope this is 100% clear. The 3D printing technology in manufacturing and infrastructure sectors में कैसे काम कर रहे हैं और कैसे वर्क करेगा। Now अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि what infrastructure sector does mean. ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है मैंने, ये कर लिया है। Now द कॉमन पॉइंट पे आप डायरेक्ट आएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स मींस क्या है? कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्या है? बिल्डिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, ये सारा। अब मैं बात करूं, किसी ने बोला कि भैया रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? घर बनाएंगे, हेल्थ केयर पर्पज के लिए बनाएंगे, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, सब डिस्कस कर लिया। तो इस
after end of this slide, we are to the point, we are at the step कहाँ पे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हमें समझ में आया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, टनल, एटीसी। तो इस पे हम सब टॉपिक हमारे अलग अलग सेशन होंगे, हाउस बताएंगे, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मिस्टर फिनिविल्सन विल टेक दिस टॉपिक, मिस श्रद्धा विल टेक one session in which she will discuss about the printed bridge, road and bridge, especially printed bridge लेंगे, road लेंगे and bridge, in which the railway, airport, these all things will come, and कह सकते हैं हम उसे कि वो transportation से। And again I'll take a more session for printed pipelines, sewage treatment plant के लिए, water plant के लिए, gas के लिए कैसे pipeline का construction करेंगे with the help of the 3D printing, it will come. So here the section is divided and came in these sectors. So now I'm starting about the 3D printing in construction sectors. Yeah, construction sectors, building construction, these are all the example. Transport communication, these all are the examples. We will take this in a, step by step लेते रहेंगे, करते रहेंगे। अब नया इंटरेस्टिंग बात क्या आता है कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के सब टॉपिक में एंटर कर लिए हैं कि यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बता रहे हैं और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मॉड्यूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा। अब आ गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। पहला लाइन ही लिखा है कि इज इट पॉसिबल टू प्रिंट अ बिल्डिंग, लिखा है यस इट इज। तो क्या करेंगे, क्या एक ऐसे ही करके क्या घर देंगे, ऐसे बनाएंगे मॉडल, ऐसे प्रिंटर में डालेंगे और निकल जाएगा क्या बिल्डिंग। राहुल गांधी ने जैसे बोला था कहीं की वो कि एक तरफ से आलू आएगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, वो प्रिंटर टाइप का। तो ऐसा थोड़ा ना होगा। अगर किसी ने ये स्लाइड ले ले और मीडिया वाले ने बोल दे और मेरी लैंग्वेज को टेलीकास्ट कर दे, तो मुझे भी तो राहुल गांधी जैसा ही समझ में आया, समझेगा वो कि कैसा बेवकूफ आदमी कह रहा है कि इधर ऐसे घर बना के देंगे और यहाँ आके प्रिंट निकल जाएगा। लेकिन यस ऑफ कोर्स प्रिंट निकलेगा और श्योर निकलेगा, लेकिन नॉट लाइक दैट। जैसे वो राहुल गांधी का भी मन में विचार था कि आलू देने के बाद वो इकोनॉमिकली वे में इतना इकोनॉमिक होगा कि वो सोना के भाव से बिकेगा। वैसे ही यहाँ पे हम हाउस का मॉडल बनाएंगे और 24 घंटा के अंदर घर बना लेंगे विद इन 24 आवर। एक घर बनाने में जब हम लोग छोटा थे, गांव में थे, तो 6 महीना लगता था हम लोगों को, साल भर देखा है मैंने। स्लो प्रोसेस होता था, क्यूरिंग चलता रहता था, 30 डेज पानी पे पानी डाल रहा है, सीमेंट उसमें दीवार पे चढ़ के डाल रहा है 10 दिन तक। तो दैट वाज द ओल्ड टेक्नोलॉजी। कितने इतने साल तक लगते थे। फिर धीरे धीरे नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट होता गया। घर जो 1 साल में बनता था 6 महीना बनने लग गया, 3 महीना में बनने लग गया। अभी तो 15 दिन के अंदर एक पूरी की पूरी एक स्लैब क्रिएट कर देता है। जब अभी सोसाइटी में जब हाउस कंस्ट्रक्शन होता है तो पूरी की पूरी एक क्रिएट हो जाता है। एक सोसाइटी इतना जल्दी डेवलप हो जाता है कि कांट हियर द 3D प्रिंटेड हाउस। ये का मतलब है वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम में हम इजीली निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड, तो यही है 3D प्रिंटेड। ये देखो लिखा है व्हाई आर वी नॉट प्रिंटिंग बिल्डिंग। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ये है ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में, एंड दिस इज द राइट साइड में 3D प्रिंटेड। सभ्य समाज लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये देखो ऐसे लग रहा है स्लम है, कहीं ट्रक लगा हुआ है, कहीं कुछ है, कोई डिजाइन नहीं, बिल्डिंग के कोई डिजाइन नहीं। यही ठीक डिजाइन इस साइड बना हुआ है, सारे टावर्स हैं यहाँ, यही ऐसे टावर्स हैं। इस जो बगल में जो इतने जो कचरे ये जो फैला हुआ है उसको क्या किया है, 3D प्रिंटिंग से प्रिपेयर कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो डेफिनेटली द पीपल विल प्रेफर दिस थिंग यार, करेगा ये, लोग चाहेगा ये। और यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने में ऐसा नहीं लग रहा है कि बरसों लग जा रहे हैं, बहुत कम टाइम में हो जा रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। So this is the traditional infrastructure way. This is the with the help of the 3D printing, है ना। Now this is the process कि कैसे 3D printing कंज्यूमर से लेके और 3D प्रिंटेड हाउस तक पहुंचेगा, है ना।
जैसे हमने बोला कि 3D प्रिंटिंग में ये नहीं कि हमने भैया हमें प्रिंट चाहिए और घर मिल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेप्स हो रहे हैं, ये फॉलो हो रहा है। आफ्टर दिस फॉलो यू आर फाइंडिंग अ बिल्डिंग, और उसको हम लोग बोलेंगे कि प्रिंट बिल्डिंग है, प्रिंटेड बिल्डिंग है। प्रिंटेड का वर्ड का क्या मतलब हो गया? 3D है तो ऑफ कोर्स 3 डायमेंशनल है, हर तरह से देख सकते हैं 3 डायमेंशन से। और प्रिंटेड हाउस का मतलब क्या है कि जैसे प्रिंट करके जितने बेहतरीन ढंग से निकाल सकते हैं उतना ही बेहतरीन खूबसूरत सा घर बनेगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द प्रिंटेड। प्रिंटेड का ये मतलब नहीं कि प्रिंटिंग मशीन से निकल गया। एस प्रिंटेड का ये मतलब ये कि 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से निकाल लिया। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी इसलिए नाम है बिकॉज दे आर गिविंग द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द 3D प्रिंटेड वे कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वे। So here is the step. I want to read. This is not the the बहुत ही बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग में ऐसी बात करना बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि इतना से यहाँ करेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक घर बना लेंगे। ये सिविल इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल एक मजाक करने वाली बात हो जाती है ये। इवन दैट हाउ द 3D प्रिंटिंग इज वर्किंग, उस सेंस में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या करते हैं। सपोज वी आर द कस्टमर, हमने घर खरीदना स्टार्ट करने के लिए गया, चक्कर लगाए घर कहाँ खरीदे, घर खरीदे। हमें बोला कि भैया आइए महीना भर के अंदर आपका घर तैयार हो जाएगा। सही हो जाएगा, मुझे लगेगा सोसाइटी में सही तैयार हो जाएगा। तो क्या करेगा? सबसे पहला स्टेप क्या करेगा? जो बिल्डर है, जो कंस्ट्रक्टर है, एक मॉडल बनाएगा, कैड मॉडलिंग फाइल क्रिएट करेगा। कैड मॉडलिंग तो पहले हम नॉर्मल डिजाइन करते थे, लिखा हुआ है BM software with the help of BM software। देन क्या करेगा? मॉडल में अगर कोई भी मिसिंग है, कोई भी कस्टम है, कोई भी एनी मिसिंग कंपोनेंट लाइक क्या कि एक तो बना लेंगे। घर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दरवाजे ऑडिबल है क्या? इज माय वॉइस ऑडिबल? Audible. कोई ओके ओके ओके। देन हमने क्या क्या बनाया? देन अगेन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दिस इज द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी हमारा था सबको हमने एनालाइज करा। देन हमने क्या किया? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देन स्ट्रेसेस प्रिपेयर करेंगे, पाइल्स प्रिपेयर करेंगे, जितने भी, एंड विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल वे में कर लेंगे। देन क्या करेंगे? डिवाइड द बिल्डिंग इन, अलग से तैयारी कर लिया तो बिल्डिंग पार्ट को खड़े करने के लिए, प्रिंटेबल पार्ट्स को करने के लिए सेक्शन में बांटेंगे। और अगेन बैक टू BIM सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। हमारा एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, सिविल इंजीनियरिंग में स्पेशली बात करते हैं, वहां से लिंक होते हैं ये। वो क्या करता है? सारा इंफॉर्मेशन देता है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्लियर कर देगा कि यहाँ इतने ही मटेरियल रखने हैं, यहाँ इतने ही कंक्रीट डालने हैं, यहाँ इतने ही ब्रिक डालने हैं। ये बहुत बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के थ्रू हम करेंगे और फटाफट वहां जाके सिर्फ सेट करना है। जैसे हम लोग पोर्टेबल टेबल लेके जाते हैं या कहीं भी लेंगे और वो सारे जोड़ जाड़ के 1 मिनट के अंदर तैयार होके बैठ गए। सिमिलरली लाइक दैट कि मैन्युफैक्चरिंग का सारा सामान लेके गए और जाके बिल्डिंग जोड़ के खड़ा कर दिया। तो जाहिर सी बात है 8 घंटा में बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा, ये 4 घंटा में खड़ा हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात हो गई इतना बनाने में? बिल्कुल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सारा हो जाए तो क्लियरली जमा हो जाएगा। एंड ऑल लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? डिजाइन ऑल द रेनफोर्समेंट डिटेल्स एंड कनेक्शंस। ये जितने भी रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट बिल्कुल नया वर्ड है, RCC बोलते हैं इसको। हर कोई जानता है, नॉट इन द सिविल इंजीनियरिंग, कि हम ब्रिक का यूज करते नहीं है। रेनफोर्स्ड
लोहा का छड़ बनाते हैं और उसके अंदर से कंक्रीट मटेरियल पुट कर देते हैं। तो वैसे ही पूरे घर का स्ट्रक्चर खड़ा किया और कंक्रीट पुट कर दिया, घर बन के तैयार। दिस इज द प्रिंट द बिल्डिंग। तो ये बनाने में कितने टाइम लग गए? बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। इट विल नॉट मेक मोर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। So this is called, that's why this is called the printable horse. बहुत कम टाइम में बन गया। अब ये है कंटूर क्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है कि कंटूर क्राफ्टिंग क्या है, किसको बोलते हैं कंटूर क्राफ्टिंग? एक्चुअली कंटूर वर्ड से लोग फैमिलियर नहीं होते, ये तो सर्वे का क्वेश्चन है। बट कंटूर क्राफ्टिंग क्या है कि इस यू नो द इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टेस्ट है। अल्टरनेटिव मटेरियल का यूज करके जो हम लोग 3D प्रिंटिंग हॉर्स बनाएंगे उसी को क्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। दिस इज सो नाउ द फिगर में जो दिख रहा है वो ऐसे ही दिख रहा है, ये 3D प्रिंटिंग है, इसको हमने क्राफ्ट कर लिया। क्राफ्ट क्या? बना लिया। कंटूर मतलब क्या? दिखे सीधे बहुत अच्छा से। दिस इज द कंटूरिंग। अब ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते रहते हैं, जब बिलो 10 था तब भी कंटूर खेती पढ़ते थे कि स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है। दैट्स व्हाई किल द बनाया स्टेप बाय स्टेप। दिस इज कॉल्ड द कंटूर क्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड। अब कंटूर क्राफ्टिंग से पहले मैं ये बात करूं तो जब बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कि मॉडल बनाएंगे और इसी मॉडल से ये मॉडल है, ये मॉडल बनाएंगे। लोग आएगा, कस्टमर आएगा, देखेगा, तब उसे समझ में आया कि हाँ क्या बिल्डिंग लेना है। अब 3D प्रिंटिंग से कैसे हो रहा है? जस्ट आई एम ट्राइंग टू दिस यूट्यूब लिंक, कोशिश कर रहा हूँ चलाने का, अगर चल गया तो एक देख लेते हैं। यस, आई होप ये चल रहा है। क्या था इसमें? वॉल बना रहा था ऊपर पे 3D प्रिंटिंग। समझ लो ये रोबोट ही है एक तरह से, वो मशीन नहीं है कि वहां पे प्रिंटिंग हो रहा है। ये एक है ना, ये रोबोट ही एक तरह से समझो कि वर्क कर रहा है और पहले दीवार बना रहा है। ये लिखा है बिल्ड फाउंडेशन। सबसे पहले एक फाउंडेशन बनाएगा घर बनाने के लिए। कमिंग टू द अगेन कि इन वीडियोस देखे कि कैसे घर बन रहा है, कैसे मॉडल बन रहा है, कितना कितना फास्ट वे में वॉल क्रिएट किया, छज्जे डाले, पेंटिंग किया, घर बन के तैयार। बहुत ही फास्ट। दैट्स व्हाई कॉल्ड द 3D प्रिंटिंग। नाउ अब ये यही चीज फिगर्स में दिखा रहा है। दिस ऑल द थिंग्स आर इन द फिगर्स। फिगर में क्या है कि छोटा छोटा कंपोनेंट, ये सिविल इंजीनियर के कंपोनेंट्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स के लोग होते हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में बताता।
बट आई एम नॉट सेइंग द वर्ड्स, बस इतना ही समझ लो कि कॉलम बीम की बात और पाइल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, द असेंबली ऑफ प्रिंटेड कॉलम्स इन प्रोग्रेस। ये कॉलम क्या किया, 3D प्रिंटेड बनाया और मशीन के थ्रू सीधे पुट कर दिया। यही बनाने के लिए पहले क्या करते थे, कॉलम चढ़ चढ़ के इस पे बनाते रहते थे, इस पे कर रहे दिन पहुंचते थे बहुत दिन तक। साइमल्टेनियसली यहाँ क्राफ्टिंग वर्ड हो रहा है, वी प्रिपेयर्ड और आके गाड़ दिया। ये क्या है, स्लैब ने प्रिंटेड जो प्रिकास्ट स्लैब्स है इसे बनाया, लिफ्ट किया, जाके पुट कर दिया। तो हर जगह क्या कर रहे हैं हम लोग, ये डिजाइन ऐसे बनाया, डिजाइन बनाने में हमें हेल्प कर दिया। ये डिजाइन 3D प्रिंटेड ने क्या किया, 3D प्रिंटिंग ने क्या किया, ऐसे डिजाइन कर दिया, लिफ्ट किया। इनफैक्ट द 3D प्रिंटिंग खुद उठा लेगा, ऐसा भी नहीं है कि 3D प्रिंटेड सिर्फ डिजाइन ही करेगा, लिफ्ट करके सेट भी करेगा वो। So these all are the components where the जो हाउस बनाने में कैसे कंपोनेंट यूज करेगा 3D प्रिंटिंग, क्रिएटिंग, मैन्युफैक्चरिंग में, और वो फिर असेंबल करने में। So the 3D printing has how it will be very useful in this civil engineering. आपने अभी तुरंत देखा वीडियो में कि is a very cost effective, बहुत कम सस्ता है, less effective है, बहुत कम, and quickly बन जा रहा है। नेक्स्ट लैब ये देखो कि ये जो कंक्रीट 3D प्रिंटर टॉयलेट बनाया, कितना कम टाइम में टॉयलेट बना लिया, है ना। ये बहुत बहुत कम टाइम में, शायद मेरे ख्याल से 4 या 5 घंटा में था। आई जस्ट ट्राई टू मेक द वीडियो ऑफ दिस ऑल्सो कि देखो कैसे बना रहा है। ये जो 3D प्रिंटिंग से ये जो बन रहा है, ये ब्रिक है, ये 3D प्रिंटेड ब्रिक, दिस इज कॉल्ड द 3D प्रिंटेड ब्रिक। जैसा हम ब्रिक देख रहे हैं वैसा ब्रिक नहीं है। देखो कितना इजीली, यही ब्रिक बनाने में कितना, एक तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, ऊपर से पता नहीं इतने प्रोजेक्ट्स, सेल होने का प्रॉब्लम, लोग कितने लोग ईंट भट्टा वाला बेचारा बर्बाद हो जाते हैं, फ्लाई एश का इश्यूज, इतने पंगे हैं। और यहाँ देखो सीधे कंक्रीट से सीधे इसने प्रिपेयर्ड कर दिया और ब्रिक बन गया। दिस इज कॉल्ड द 3D प्रिंटेड ब्रिक। up to 30% quicker to build, up to 30% lighter। ब्रिक रिक जो हम लोग बनाते हैं वो बहुत भारी होता है, बहुत मुश्किल होता है। जो हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे, जितना लाइटर रहेगा उतना बेटर रहेगा। लाइटर होने का सिविल इंजीनियरिंग में होता है कि जो अर्थक्वेक रेसिस्ट बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हेल्पफुल होता है, बट आई एम नॉट सेइंग इन द डिटेल। बट हमारा कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि इन सिविल इंजीनियरिंग द थिंग्स शुड बी लाइटर, थिंग्स शुड बी चिप एंड थिंग्स शुड बी क्विकर, ताकि प्रोजेक्ट कॉस्ट कम आएगा, चाहे किसी भी बात करें, टॉयलेट बनाए, घर बनाए या किसी भी सिस्टम से बनाए। सी either you can see this is RCC, actually RCC वर्ड नहीं आएगा, रेनफोर्स नहीं आएगा, बिकॉज इसने ब्रिक का बनाया है और सीधे इसने खड़ा किया, बनाता चला गया, डिजाइन क्रिएट हो गया। कितना टाइम लगा ये वॉल बनाने में, बन के तैयार, वॉशरूम बन के तैयार है। कितनी देर लगेगा वॉशरूम बनाने में, वहां पे मॉल में बना लो, कहीं भी बना लो, तो बिल्कुल नहीं टाइम लगता है। ये है फ्लोर मेकिंग बाय 3D प्रिंटर। फ्लोर बनाने में कितने मजदूर रखते हैं, उसको चमकाता है, रगड़ता है, फिर उसकी पॉलिशिंग करता है। इतना सब करने के बाद एक तो इतने कॉस्ट हो जाते हैं, ऊपर से टाइम कंज्यूमिंग। अब ये देखो यूट्यूब वीडियो पे, अगेन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, छोटा वीडियो है, आई कीप, ताकि बोर ना हो लोग, है ना, कि कैसे फ्लोर मेकिंग कर ले रहा है, कितना इजीली कर ले रहा है। पॉलिश कर रहे हैं, चमका रहे हैं, और इसी को हाथ से रगड़ के चमकाते रहते हैं। सी हाँ, आजकल तो साफ करने वाला भी मशीन आ गया है।
developers are operating these things with the software. यहाँ से connected है. That was the floor making process. ये सारा एक एक स्टेप बना के इसके बाद हमारा ये घर बन के तैयार हो गया. और ये एक एग्जाम्पल है कि जो 12 घंटा के अंदर घर बना लिया है. ये प्रिंटेड 5 स्क्वायर फीट का अंदर बना लिया. कितनी बड़ी बात है ये. छोटी बात नहीं है कि 12 घंटा के अंदर घर बना लेना. इट्स नॉट द इजी टास्क. बिल्कुल आसान काम नहीं है. I'm trying to click on this YouTube also so that you can see कि कितना कम टाइम में बन जा रहा है. देख लिया कितना क्विकली घर बन जा रहा है. स्लैब डाल रहा है, सब कुछ डाल रहा है, कॉलम पिलर सब फटाफट डाल के करता जा रहा है. तो ऐसे में हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग बहुत जल्दी क्विक बन गया. बिल्डिंग इज वेरी क्विकली. सो नाउ द पॉइंट इज दैट द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्री एंड मोटिवेशंस. क्या बेनिफिट्स है? ऑफ कोर्स कहने वाली बात ही नहीं है. एक्स्ट्रा कॉस्ट बच जाएगा, ऑटोमेशन होगा, लेस ह्यूमन फैक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, अच्छा शेप बनेगा. ह्यूमन तो गलत भी करेगा, 3D प्रिंटर गलत कर ही नहीं सकता है ना. कस्टम पार्ट्स बहुत जल्दी बन गया, सब बन के तैयार हो गया. एडिशनल फंक्शन इनटू स्ट्रक्चर्स, एडिशनल फंक्शन कहीं से भी लाया सीधे कर दिया. घर को लेके कहीं से गया और कहीं शिफ्ट कर लिया. पता चला कि आज घर दिल्ली में बना के बैठा हूँ, ट्रांसफर हो गया हमारा सपोज कानपुर, तो हमने कानपुर ही घर लेके चला गया. मैन्युफैक्चर सारे सिस्टम लेके उठा के लेके चले गए वहां जाके छोटा घर, तब 100 300 या 200 250 स्क्वायर फीट का घर बना के रह लिया, कर लिया. फाउंडेशन बनाने में भी उसको टनल और ड्रिलिंग की जरूरत नहीं हो रही है. दे आर मेकिंग दिस ऑल आर द थिंग्स. ये सारा है जो हमारा बेनिफिट है. हर कोई चाहेगा इसको. नाउ आई एम जस्ट गिविंग द कंपैरिजन कि क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट होगा. तो ये सिंपल है. एक हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यूज किया एंड दिस इज द कन्वेंशनल टाइप्स ऑफ the construction and this is the contour crafting. Contour crafting का मतलब ही हो गया the civil structure, building बना रहे हैं. Contour crafting means this is the structure. So don't think the word contour crafting क्या है, समझ लो कि ये घर बना रहे हैं. अब नॉर्मल है, दिख रहा है. कन्वेंशनल में क्या आ रहा है, मशीनरीज में क्या क्या चाहिए, कंक्रीट मिक्सर, एक्सकेवेटर, बिल्डर, क्रेन, ये चाहिए. ये तो चाहिए ही, मशीनरीज हम तो यूज कर ही लेते हैं. इवन दैट वी कैन रिप्लेस दिस थिंग्स. 3D प्रिंटिंग रोबोट की तरह काम करने लग गया, तो ये सब सारा मिला के एक ही वर्ड आ जाएगा, 3D प्रिंटिंग. ये सारा एक काम कर लेगा अकेला. तो एक मसली मशीनरी, हाँ थोड़ी सी हैवी शेड और उसके परचेजिंग डिफरेंट हो जाएंगे. बट हियर द लेबर कॉस्ट देखो लिखा है ग्रेटर देन 60% आर लो स्किल्ड लेबर्स. नौकरी चाहिए इंडिया में, लेकिन नौकरी चाहिए क्या करेगा. बट इवन दैट ये फेजेस चल रहा है, सिखाना पड़ रहा है, ट्रेनिंग देना पड़ रहा है, ट्रेनिंग कॉस्ट ज्यादा हो रहा है. एक बार हमने खरीद लिया 3D प्रिंटर, कॉस्ट ही नहीं आना है, कई बिल्डिंग्स बनते रहेंगे, है ना. सो ये दिस इज द कन्वेंशनल एंड दिस इज द कंटूर क्राफ्टिंग. ये लेबर मैन पावर था. मॉनिटरी कॉस्ट में फाइनेंसिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, लेबर इंटेंसिव. देखो यहाँ मशीन है, कहीं नहीं है, आज आ रहा है काम करने, कल आएगा भी नहीं. लेबर बदल गए, छोड़ दिया तो उसको फिर ट्रेनिंग दे रहे. 3D प्रिंटर कहाँ से जाएगा, कहाँ भागेगा वो. एक बार परचेज कर लिया तो जा नहीं सकता वो. सो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम लर्निंग, टाइम टू टाइम स्किल एंड अनस्किल, दिस प्रॉब्लम विल नॉट कम.
हम लोग इसको पेश ही नहीं करेंगे। बिल्कुल बेनिफिट है। मटेरियल्स क्या है ये देखो, पहले हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ लेते थे, बड़े बड़े पत्थर के घर बनाते थे, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या बना के बुलडोजर जैसा घर बनाते थे। आजकल क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा मिनिमल वेस्ट से छोटे छोटे साइज बना लिए, छोटे छोटे ब्रिक बना लिए, या सारे ब्रिक बनाने है कि एक ही खड़ा कर दिया। तो ये जो इंटीग्रेशन कॉस्ट है ये बच जा रहा है। फाइनेंस ऑफ कोर्स, ये लॉन्ग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है कन्वेंशनल, एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। फाइनेंस में तो 30% 60% की बेनिफिट है। जो घर हमें 25 लाख में मिल रहा है, 30 लाख में मिल रहा है, उसमें से 30% रिड्यूस कर दो, 20 लाख में घर बिकने लगेंगे, सबको फायदा है। कम टाइम में भी मिल रहा है और कम समय में मिल रहा है। एनवायरमेंटल बेनिफिट, ये तो बहुत बड़ी बात है कि कम से कम जो 3D प्रिंटिंग काम करेगा तो वेस्ट को ही फिर से कन्वर्ट कर लेगा। यहाँ वेस्ट को कन्वर्ट करने में, वेस्ट बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इन द ट्रेडिशनल वे वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और हेल्थ हजार्ड अलग बात है, जितना हम लोगों को बचा नहीं रहा उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं, मर जाएगा, हेल्थ हजार्ड्स हो जाए। फॉर दिस हेल्थ वी नीड अ हॉस्पिटल, वी नीड प्राइवेट क्लिनिक्स, वी नीड द ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग कैसे होगा, ड्रिलिंग प्रोसेस, ये सारे कॉस्ट आ जाएगा ट्रेडिशनल में। ये लोग रहेंगे ही नहीं, बहुत कम लोग रहेंगे। इट विल बी टेक कॉस्ट ओनली ऑफ द मशीन मेंटेनेंस, और कितने लोग मेंटेनेंस करेंगे। तो सो ऑन द इन द बेसिस ऑफ वी कैन से कि ठीक है एनवायरमेंटल बेनिफिट है, बट एज अ ह्यूमन आई डोंट प्रेफर कि हम नहीं करते, नहीं करना चाहिए। But again, just moving forward, I'm not just saying the word in the emotions way. Just I have to consider the things in a professional way only. कि what is the benefit और how हमारा economical conditions कैसे move करेगा. So on that basis, the 3D printing is a very benefit. So already again I said that the example of the structure means infrastructure means the building construction, road construction, bridge construction, tunnel constructions. These all are the called the example of infrastructure, जो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे. Now the building construction is over now. Similarly, just I'm not going in the detail, and I'll just try to discuss in a shorter way कि बाकी other constructions में कैसे काम कर रहा है. Now the 3D printing in road construction. See, printed road. क्या कभी देखा होगा ऐसा कि पूरी ऐसे बना लिया और ये ब्रिक इसमें डालो और ब्रिक अपने आप सेट होके ऐसे रोड बनाते हुए चला जाएगा, कि यहाँ गिराते चलो, जो जैसे वो वीआईपी लोग आते हैं और ग्रीन कारपेट बिछा देते हैं, वैसे ही सोचो कि कारपेट बना हुआ है, ये हमने दिया और ब्रिक ने रोड बनाते हुए चला गया यार। मतलब वीआईपी आए तो रोड हटा भी लो, लाइक दैट। आई मीन दिस इज आई मीन लोगों ने सपना में भी नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा मतलब हो सकता है, ऐसे क्रिएट हो सकता है। एंड राइट नो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। कल फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। ये रोड जो अभी हम ये रोड बना रहे हैं, पता नहीं इनविजिबल रोड ना हो जाए। अभी जो टाइमिंग है ना, मतलब आई डोंट नो क्या आने वाला है टेक्नोलॉजी। बट दिस इज यू कैन सी दिस पिक्चर, और ये मतलब हमारे लिए एक स्वप्न के बराबर है। दिस इज काइंड ऑफ द ड्रीम आई नेवर थिंक, कोई नहीं सोचा होगा कि ऐसी ब्रिक। ये जो सच्ची बताओ तो जब हम लोग छोटा थे तो गांव में इसे खरंजा बोला करते हैं हमारे यहाँ लैंग्वेजेस में। इसको बनाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए इतने लेबर कॉस्ट होते थे, और ये हर एक गैप को, क्रैक्स को मैच करता था, ब्रिक को ब्रिक करके गैप में पुट करता था, और महीनों तक गांव में कंस्ट्रक्शन वर्क चलता था ये। और इधर कंस्ट्रक्शन वर्क जहां पे एंड नहीं हुआ रोड पे, इधर से टूटना स्टार्ट हो गया, इवन ब्रेकिंग स्टार्ट हो गया। सो ऑल ओवर माय चाइल्डहुड इज स्पेंड इन द खरंजा ओनली, कि हमने कभी पिचिंग देखा ही नहीं, किसके ऊपर जो बिटुमिन लेयर देगा वो देखा ही नहीं। Whenever again the end of this time, again ये ऐसे ही ब्रिक का कंस्ट्रक्शन फिर स्टार्ट होता था, तो पूरे खरंजे के खरंजे ही बनते रहते थे। नो, कभी बनता ही नहीं था, होता ही नहीं था। आई नेवर सीन। नाउ in a one day, suppose they have a make a 3 kilometer road, अभी उठेगा और कितनी देर में ये 3 किलोमीटर जाएगा? 3 घंटा में चला गया। सपोज अगर स्लो भी चला तो इन 3 घंटा, अगले 3 घंटा में पेट्रोल बैठ गया, मतलब 6 घंटे में रोड तैयार है। मतलब रात में सो और सुबह जब उठो तो देखो कि रोड चकाचक कर रहा है, नो प्रॉब्लम, कुछ है ही नहीं। फ्लड के इश्यूज खत्म हो जाएंगे, कितने इश्यूज है जो खत्म हो जाएंगे अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाएंगे तो। सो यू सी, मतलब दिस इज रियली इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि ऐसे बन सकता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्रिक मेड रोड। अब तो ब्रिक बनाते भी नहीं है। अब अगर मैं पेव डिजाइन की बात करूं, दे आर मेकिंग ऑन द पेव ऑन द किनारा, तो देखो
यही बनाते थे, चलता था, फिर मेजरिंग, पहले सर्वे हो रहा है, दिन सर्वे के बाद कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ दिस स्टेप्स। नाउ इन अ गोडाउन और कोई भी एक जहाँ पे बना रखा है, 3D प्रिंटर, देखो ये 3D प्रिंटर है, 3D प्रिंटर इस क्या किया है, 2 मिनट के अंदर डिजाइन कर दिया, दे आर मेकिंग, लिफ्ट किया और सबमिट कर दिया। मतलब क्या है दिस टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मतलब आग लग जाने वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल कोरोना क्या लोगों को तंग कर रहा है, कोरोना से मतलब मैं क्या बोलूं, लोग टेक्नोलॉजी देख के ना पागल हो जाए, टेक्नोलॉजी देख के हार्ट अटैक ना आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? अगर 60 साल के 80 साल के बूढ़े या गांव में अचानक आए और सुबह देखे कि 3 किलोमीटर में खरंजा बैठ गया ब्रिक का, तो हार्ट अटैक ही होगा ना उसके लिए। वो टेक्नोलॉजी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कोरोना से ज्यादा हार्मफुल है यार वो ना। आई मीन हार्ट अटैक हो सकता है उसको, रियली दिस इज, आई मीन आई कांट एक्सपेक्ट। एक्चुअली हम लोग तो जनरेशन है दोनों के बीच में है, जो जस्ट टेक्नोलॉजी आया, मोबाइल आया तो लिटिल, जब हम थोड़ा सा ही बड़ा हुए तो मोबाइल आया, एंड देन नाउ वी आर गोइंग इन दिस टेक्नोलॉजी, तो हमारे लिए तो बैलेंस्ड है। बट व्हाट अबाउट द अदर्स? बहुत अजीब बात है, मतलब आई मीन दिस इज अमेजिंग। ऐसे ही देखो एडवांस पेविंग टेक्नोलॉजी के लिए, पेव बनाने के लिए, वहां तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग की बात किया, यहाँ सीधे 3D प्रिंटर उठाओ और पेमेंट बना के चला जाएगा। रोड खराब हो गया, अब रोड खराब होता है तो यही पे ग्रेटर नोएडा में देख रहे हैं इतने रोड खराब पड़ा हुआ है, फिर उसको मेकिंग करता है, बुलडोजर चलाता है, पता नहीं क्या 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 करता रहता है ना। इसमें 3D प्रिंटर आया और जहां जहां क्रैक्स है उसको रिपेयर करके चला गया, कॉस्ट भी कम लगा। एक बार सिर्फ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, रेस्ट कॉस्ट ही नहीं। इट्स अ वेरी आई मीन दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग, मतलब यकीन नहीं कर सकते। सिमिलरली फॉर 3D प्रिंटेड ब्रिज, सपोज इन द रिवर, if the river is a very long river like a कोसी river में तो बहुत difficult है, in where we have to create a bridge, this is a very difficult कि सेंटर में जाके टेक्नोलॉजी होता है जो जहाँ पे हम पाइल्स करते हैं। नाउ ये कुछ नहीं करेगा, 3D प्रिंटिंग क्या करेगा, 3D प्रिंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड ऑफ द रिवर एंड मेकअप बनाते जाएगा, कंस्ट्रक्ट करता जाएगा, चलता जाएगा उस पे बैठ के, सीइंग दिस थिंग बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। जैसे हॉलीवुड फिल्म में देखते हैं कि ब्रिज टूटता जाता है, ऐसे ऐसे करके भागते रहते हैं, टूटता रहता है। सिमिलरली इन दिस वे द 3D प्रिंटर इज डूइंग इन द रिवर्स वे, लाइक हॉलीवुड मूवीज, दे आर मेकिंग यार, दे आर मेकिंग द ब्रिज एंड लाइक दैट, कितनी देर में बन जाएगा इस पार से उस पार। Government every year government is investing their money, government every year they are investing for this infrastructure. They can invest in a one terms in the 3D printing technology, they can never be reuse this money. यही रीजन है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रॉब्लम हो रहा है, इंडिया में है ही नहीं। कितने लोग 3D प्रिंटिंग देख रहा है, ये है ही नहीं, लिटरली नहीं है यार, ही इज नॉट दैट। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो है ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में तो है, लोग के टेबल पे रखा हुआ है, बट नॉट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेजर प्रायोरिटी। हम कह रहे हैं रियल सेक्टर इतना डाउन में चला गया, ये हो गया, फ्लैट नहीं बिक रहा है, ये नहीं बिक रहा है, वो नहीं बिक रहा है, अगेन हम बड़े पिट करेंगे कॉस्ट। सो आई मीन दिस इज अ रियली, दिस इज अ अमेजिंग थिंग, यू हैव टू मेक दिस ब्रिज। तुमको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक बनाने में उसको टाइम लगेगा, तो 2 प्रिंटर लगा दो, वी कैन मेक अ 2 प्रिंटर, एक प्रिंटर इधर बनाते जाएगा, एक इधर से बनाते आएगा, मेक दिस। सिमिलरली अगर वाटर भी होता तो कर लेगा, they are making this thing, डिजाइन बनाएगा जैसा चाहिए, जो भी चाहिए, it will take a less time. So I mean क्या बोलूं मैं, this is the really if the people they don't know, even most of the people in India don't know about that, the 3D printing machines can be used in the infrastructure, civil structure, even no IIT is running this program, कोई IIT प्रोग्राम करा रहा है सिविल इंजीनियरिंग में कि 3D printed in the civil engineering, the mechanical and manufacturing department ही सिर्फ और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ही में भी नहीं चल रहा है। दिस इज अ वेरी न्यू थिंग। और बताओ दुनिया कहां से कहां लग गया, हम लोग पीछे हैं। इन 2003 ये स्टार्ट हो गया कई कई कंट्रीज में, अब यूएसए में तो इतना ज्यादा स्टार्ट हो गया कि पूछो मत। इंडिया में तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ फिगर्स में दिख रहा है, फोटो में ही दिख रहा है। वेल्डिंग कराना है, हम जाएंगे क्या, लोग को लेंगे क्या, नहीं, ये खुद से 3D प्रिंटिंग रोबोट है ये देखो 3D प्रिंटिंग रोबोट, अभी कुछ देर पहले ही बात कर रहा था, 3D प्रिंटिंग रोबोट इज देयर, खुद से वेल्डिंग भी कर लेगा, सेट कर लेगा। सो ऑल द थिंग्स, एक 3D प्रिंटर आ रहा है, दे आर डूइंग द वर्क। मतलब दिस इज अ अमेजिंग थिंग, दिस इज अ वेरी अमेजिंग थिंग, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और दिस इज अ वेरी न्यू थिंग इन द सिविल इंजीनियरिंग। एंड ये तो बिल्कुल कोर्स में आ जाना चाहिए ना, बिल्कुल ऐड कर जाना चाहिए 3D प्रिंटिंग सिविल इंजीनियरिंग। सिमिलरली सी 3D प्रिंटिंग मेट्रो कंस्ट्रक्शन, ये जो मेट्रो बनाएंगे वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये जो ट्रैक बनाएंगे हम लोग देख रहे हो, दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंप्लीटली कोरिलेटेड टू
each other here. Correlations में हम चल रहे हैं. That's what the topic is, the 3D printing, manufacturing and infrastructure. हमारे यहाँ मेट्रो ही नहीं बन रहा है. ग्रेटर नोएडा से, ये ग्रेटर नोएडा का कनेक्शन नहीं दे रहा है, दिल्ली से कनेक्ट नहीं हो रहा है. बरसों से प्रोजेक्ट लदे हुए हैं, लगा हुआ है, और यहाँ 3D प्रिंटेड बन के रन हो जाएगा. कितनी देर में रन होगा ये? यहाँ सालों साल प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ न्यू निकल जाएगा. So you know, this is the बना. ये देखो डैम कंस्ट्रक्शन, ये 3D प्रिंटेड कंक्रीट बैराज बना लिया. ये यूएसए का है, ये सीन है ना. हम सीधे बैराज बना के 3D प्रिंटेड से बना लिया. सी इन द टनल कंस्ट्रक्शन, 3D प्रिंटिंग टनल का से ड्रिलर मशीन है. ये क्या करेगा? ये ड्रिल करेगा एंड एंटर करते चलेंगे, ड्रिल करेगा, करते चलेंगे. अब बरसों लग जाते हैं यहाँ पे ड्रिल करते जाए, एंटर करते चलेंगे. सो इन लेस टाइम पहाड़ी इलाका भी कनेक्ट हो जाए. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है कि वहां पे पहाड़ है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? एक किलोमीटर जाने के लिए वहां 3-3 घंटे लग रहे हैं. वी कैन नॉट ड्रिल दिस थिंग्स. आप तो इजिली ड्रिल कर देंगे यार, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, इजिली ड्रिल कर देंगे इस चीज को. अब यही सब है. So now I'm coming on the pipeline construction. ये पाइपलाइन है, बना हुआ है, इस पे ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा. पाइपलाइन किसके लिए बनेगा? वाटर सप्लाई के लिए, गैसेस के लिए. गैस सप्लाई होगा, हर घर में पीएनजी पाइपलाइन आ गए. फॉर दिस कंस्ट्रक्शन, पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन कैसा हो सकता है? मे बी कंक्रीट, मे बी विद द मेटलिस्टिक, किसी भी हो. Maybe in the subject wise, maybe in a component wise. So similarly here, both the work will be work simultaneously. मैं manufacturing कभी छोड़ ही नहीं रहा हूँ. Each and every step I am saying that the manufacturing is the part of the infrastructure, and infrastructure and manufacturing is a correlated. So whenever we are discussing the things in invisible way, we are talking about the manufacturing also. And actually we are giving the session on the infrastructure. That's why I'm talking the word infrastructure. Otherwise the manufacturing is the subset. मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये पाइपलाइन है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग होगा. देन व्हेन जैसे ही हमने ये बना के प्रिपेयर करें, नाउ दिस इज कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये कस्टमाइज कर लेंगे, कहीं से भी बिल्कुल कस्टमाइज होगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा. 3D प्रिंटेड पाइपलाइन जल्दी बिछा लेंगे, बहुत इलाका में आता ही नहीं रहता है. नाउ इट विल कम. सो दिस ऑल आर द थिंग्स, यू नो, द अबाउट दिस infrastructure. This is the only the correlation, the transport communication. Again, I am saying that infrastructure में transport है, in the transport communication and building construction. In this transport communication, you can see, हमने कहीं से data लिया है, resources लिया है. This is the logistics sectors में कितना का क्या flow है. Now see, the world cargo flow and the 3D printing, है ना. ये जो हमारा changes है, ऐसे waste का changes है, देश का में. एशिया में now the 58.6 within Asia. लेकिन एशिया का मतलब इंडिया मत समझो. एशिया मतलब इंडिया इज द डिफरेंट थिंग, एशिया इज द डिफरेंट थिंग. हम एशिया की बात में हम अपने इंडिया के डेवलपमेंट को एशिया में घुस के कर लिए. बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ, यू नो, द इंडिया, द 58.6 इज नॉट द पार्ट. इन एशिया चाइना आ रहा है, इन एशिया रशिया आ रहा है, इन एशिया जापान आ रहा है. दीज आर द कंट्रीज जहाँ पे हमारा उन्होंने प्रोडक्ट को बढ़ाया है, नॉट ए इंडिया. इंडिया में बहुत कम है, बहुत इज अ वेरी लेस. एक्चुअली मैं ढूंढने की कोशिश किया कि इंडिया में कितना परसेंटेज और कैसे कोरिलेशंस है, बट मुझे मिला नहीं. सो अब मिल जाता तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता, बट जस्ट आई डिडंट फाइंड दिस थिंग. तो क्या कर सकते थे. नाउ द एंड ऑफ दिस थिंग्स इज दैट नाउ आई एम जस्ट अबाउट टू एंड ऑफ द थिंग्स. एंड हमने देख लिया कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेनिफिट्स हैं. ऑलरेडी देख लिया था हमने स्लाइड. टाइम कम लगेगा, अच्छा बनेगा, मोस्ट कॉफिशिएंट होगा, कम टाइम पे होगा. बातें ही बातें, लेयर टू लेयर जल्दी जल्दी बना लिए, खत्म ही नहीं होना है. बेनिफिट ही बेनिफिट है, लेबर कॉस्ट कम है, बहुत है. नाउ ये डेटा है, ये सोर्स से लिया हमने. सो 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन इन मार्केट साइज, 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन का लिया हमने डाटा. Actually, we had a overall also data, but later we will discuss here the construction size. See, ये कंट्री का सिंबल दे रखा है, एंड वी आर वेयर द एशिया पैसिफिक. दिस इज द एशिया पैसिफिक. ये वाली कलर पे हम लोग हैं, ये वाली कलर है. एशिया का है तो ज्यादा, 2026 में बढ़ेगा, लेकिन अब कितना इंडिया में बढ़ेगा वो आने वाले टाइम में ही बताएगा. लेकिन बहुत कम है हमारा कहाँ, लैटिन अमेरिका. अब लैटिन अमेरिका में अभी भी बहुत कम है. वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की इतने मतलब डेवलपमेंट होना है वहाँ पे. मैं तो कहता हूँ सारा सिविल इंजीनियर्स को वहीं चला जाना चाहिए.
वहीं पे काफी पैसे उसे मिलेंगे, काफी जॉब भी मिल जाएगा वहाँ पे। सो दिस आर रिक्वायर्ड। वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कोने हैं जहाँ पे बहुत नीड है, बहुत ज्यादा है। सो एशिया साइज में भी बहुत बड़ा है, कोई इतना लंबा देखने के ये मतलब नहीं है कि इतना बड़ा डेवलपमेंट हो गया। पॉपुलेशन भी ये तो दिखेगा ही, है ना। यूरोप साइज छोटा है, still this is the development. So this is the the table that is correlating from 2017 to 26. देखो 17 में कुछ नहीं था, कोई कंट्री का कोई दिख ही नहीं रहा है, जीरो। It's came in the 2019 $4.58 USD million. They came here in data. I'm just reflecting this data from 2017 to 26. इसका ये मतलब नहीं है कि 17 में ही आ गया. I'm not telling that. My opinion is not that कि 17 से ही आ गया. Earlier that was started discussed. You see कितना है, कम है. In 2004.8 कम था. इन्हें थोड़ा के changes. Okay. Now I hope. Yes, I hope my voice is audible. So, so this is the data, and is expecting that in 2024 थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 23 में आगे बढ़ेंगे, and 2026 बहुत ही तेजी से आगे निकलेंगे. But this data is before कोरोना वायरस. ये डेटा हमारे पास कोरोना वायरस से पहले का था. Up now, the coronavirus is the major thing, and that will change completely of all the graphs. So whatever the graph and whatever the data will produce, I'm telling you, बिल्कुल applicable नहीं होगा. Now this is the prediction, because right now this data is not, that you cannot find any resources where the data can be found. तो हम दिखाते हैं, but I just forced that कि मुझे पुराना data दिखाना पड़ेगा. So ये एक imaginary समझो, इतना होना नहीं है, like that. Now the tall trend countries in the printing. See, again I am telling you, this is the data before coronavirus. सब बदल जाएगा. In which you can say the worldwide कितने डॉलर लोगों ने अपना इन्वेस्ट कर रखा है. And ये this is the data of the top 12 countries in printing. See, अपना इंडिया यहाँ पे है, हम लोग $22.8 पे हैं. This is India. Now यही 22 के बगल में देखो, this is 97 है, 971 है, 92 है. So overall in Asia, these countries are there. इधर देखो है ही नहीं, बहुत कम, ना के बराबर है. I mean, this is not East, ये जो African side है, that's very less. The opportunities are very nice in this sector when we are turning in, that in the terms of 3D printing. This data is not only for structure only. This data is for both manufacturing and infrastructure in all the fields. So these all are the datas, and I had to just produce these things. Yes, sir. 3D printing technology non-stop है, खत्म ही नहीं होना है. So just I added the 2 to 3 lines. That is the latest news related to 3D printing infrastructure sectors. So yeah, see, this is the May 11, 2 दिन पहले का न्यूज है, और प्रेस रिलीज इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से था ये, कि लिखा है द 3D printing construction market size worth इतना million by 2026. Now, this is the true data in terms of the coronavirus. जब कोरोना वायरस की बात चल रही है तब की बात है कि इतना एक्सपेक्टेशंस किया है. Now, अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि I do not produce, but right now this has, यहाँ पे है, you can see. So, again another news is 10 by का लिखा हुआ है कि अभी बेस्ट ऑप्टिकल ये टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग ये सेमीकंडक्टर में, मेडिकल प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब में एंटर करेगा. टाइम्स ऑफ इजराइल का न्यूज़ है, वहाँ पे आया है कि इजराइल में आप एंटर करेगा इसमें 3D प्रिंटिंग. इसी के थ्रू मेडिकल प्रोडक्ट्स बनेंगे और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं. ये जो एकॉम्स कंपनीज है, सिविल इंजीनियरिंग कंपनी है, ये 3D प्रिंटेड ग्राफिन करेगा. ये कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट ट्रैक बनाएगा, नेटवर्क फॉर रेलवे नेटवर्क.
इसने प्लान कर लिया, ये 28 अप्रैल का न्यूज़ है टाइम्स नेशन में. So you can see everywhere they planned and about to, they start the work in the 3D printing. ये लेटेस्ट न्यूज़ था और चलता रहेगा. Now I'll try to conclude the things. Conclusion means what? Conclusion means that everything, whatever I have discussed, this is the conclusion. But in the conclusion, now if I'll say कि कितना काम होगा, इंडिया में तो रियल एस्टेट का बुरा हाल है, तो क्या 3D प्रिंटिंग आने से क्या तो चल जाएगा, काम आ जाएगा? अचानक तो नहीं आएगा. 3D प्रिंटिंग क्या करेगा आके? जो रियल एस्टेट में जितने बिल्डिंग खड़ा है, क्या वो उसको गिरा डालेगा वो? नो, दे कैन रिशेप देयर, नो, दे कैन सेल देयर, नो. So sudden this is not, the technology will not come in the infrastructure. I'm talking about the new technology, new infrastructure. I'm not talking about the old infrastructure. We cannot reshape this in the old infrastructure in a new way. It's a very difficult to shift. You cannot shift. So this is the कहने के लिए बात तो बहुत है, but really it's a very challenging. We cannot, you cannot say this is all the things on the paper only. कितना भी बात कर ले, the 3D printing जमाना आ गया, ये हो गया, 3D printing can change, 3D printing can change. Like लोग कहते हैं कि जॉब मार्केट में है, जॉबलेस लोग, स्किल्ड नहीं है, जॉब मार्केट में स्किल्ड है, कहाँ है जॉब? Similarly like that, the job is on the paper only, सब जगह है, but not in the real world. Skill doesn't mean what is the skill, कुछ नहीं होता है. So similarly, just this is the conclusion is that in India, even that I'm telling you in the infrastructure field, sudden कोई जादू की छड़ी नहीं चल जाएगा. And if the government is planning to purchase a 3D printer and to use the infrastructures, उल्टा मुश्किल है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, unemployment is more, and कोरोना वायरस और भी हालत खराब कर दिया, और उल्टा घाटे में जाएंगे. So first thing is that we have to sell all the old real estate things, and then we have to invest in a new way. Problem ये भी है कि if we are just purchasing right now the 3D printing and they will prepare the 3D models a horse, कौन खरीदेगा पुराना यार? No one want to purchase. सस्ता में बिकेगा. जो पुराने जिस पे कॉस्ट ज्यादा है, अच्छा भी नहीं बना है, they will sell in a costly. 30 lakhs में जो फ्लैट्स बिक रहे हैं अभी पुराने ओल्ड, the 3D printer 20 lakhs में बेचेगा. The economy will be, ऐसे ही गिर जाएगा. So it should be the proper plan कि कैसे हम old change कर ले, then we have to introduce the 3D printing. हर रब्बा हमने बोलने लगे 3D printing नहीं ला रहा है, गवर्नमेंट ये कर रहा है, गवर्नमेंट वो, no, this is not the way. I'm especially talking in the infrastructure, but in the manufacturing, of course, we can introduce as soon as possible, जितना हो सके जहाँ हो जाए. हमारे कॉलेज में भी 3D printer आ गया, वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग, वहाँ भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है. Now, in another way, I'm saying that the North America is the dominant region of global 3D printing and construction market, and India is planning to do so far. North America, वहाँ पे बहुत, North America मतलब कनाडा की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है. जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन बहुत सब वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बहुत जीरो है. So these all are the conclusion in which we can say कि Middle East and Africa and South America is expected to witness moderate growth in the near future. आने वाले टाइम में बढ़ेगा. So everywhere the जमाना is of the 3D printing right now. बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि 3D printing को मैंने समझ लिया कि we can use these things in the infrastructure, and this is a very new thing for all. Still before concluding the things, I'm saying that this is the completely interdisciplinary. आपने भी देखा होगा कि मैंने बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी वे में बोला, दिस इज नॉट द स्पेसिफिक फॉर सिविल इंजीनियर. ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियर ही समझ लेगा. सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दैट इज द फिल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो 3D प्रिंटिंग हाउ इन इंफ्रास्ट्रक्चर, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करेंगे, कैसे करेंगे, हमने कंक्लूड किया. नाउ अगेन आई एम जस्ट ट्राई टू कंक्लूड दिस एज पर आवर समरी स्कूल. मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 3D प्रिंटिंग है. द एप्लीकेशन ऑफ द 3D प्रिंटिंग इन मैन्युफैक्चर सेक्टर was discussed yesterday by Dr. Satrugn sir. बहुत अच्छा presentation उन्होंने दिया था. They discussed of all the examples, हर एक field का बताया. Now today I told you the 3D printing technology in the field of infrastructure, और infrastructure में कहाँ कर रहे हैं. So after today onward the subtopic will be start. Subtopic होगा bioprinting होगा, biomedicals होगा, materials होगा, solar में होगा, सब एक एक करके रोबोटिक्स में होगा, सब में एक एक करके डिस्कशन होते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सटर्नल गेस्ट. सो जस्ट आई एम टेलिंग इन द एंड of this session at 11:30, this is the first session. The second session will give the open discussion, open house रहेगा. The people can ask the questions करेंगे. It might be possible I'll take some question quizzes
So देखेंगे उसके हिसाब से कि what was the time there and what is the situation. So before closing this thing, just I'm very thankful to all of the participants for this session. And this is my word. Actually, this is not my word. Believe in human work, not in technology. Actually, गांधी जी ने भी बोला था कि जब मशीन आ जाएंगे तो लोगों को नुकसान हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे. तो ऐसी ही बात है, देखा कि अगर 3D प्रिंटिंग आ गए तो लोग कहाँ जाएंगे. पहले एजुकेशन, देन 3D प्रिंटिंग. सो दिस इज द प्रायोरिटी. सो स्टिल आई एम टेलिंग यू कि 2 रोटी बांट के खाओ, भले ही एक अच्छा रोटी की बजाय. सो बिलीव इन ह्यूमन वर्क. लोग काम करेंगे, ज़्यादा अच्छा है. हर घर में रोटी बनेगा, नॉट इन द मशीन. सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर दिस सेशन. सर, शिव सर. शिव सर नहीं है. ओके. So okay, for question answering round, we will. Its time is right now 11:30. So as per our schedule, the time is over right now at 11:30. So we will again resume on 11:50. 11:50 पे हम लोग resume होंगे, and we will discuss. The session will be open for question round. जिसको question पूछना है, they will ask, and open house करेंगे, discussion करेंगे. Might be I'll take a quizzes करेंगे. And proceed करेंगे. Okay. Yeah, Harshit, thank you very much. Harshit, you appreciated me, and Ashish, yeah, appreciated. Thank you very much. So I hope any kind of the questions, any kind of the queries related to these things, 3D printing, additive manufacturing, infrastructure, manufacturing, any sessions, scopes, you will ask in the next session. So thank you very much. And just I want to close this session right now, and we will come again at 11:50. So thank you. Thanks for coming. Okay, Gaurav sir. Yeah, Prince, sure. Hindi and English both medium में बोलेंगे, because of most of the students are from north side, so they can understand easily if we will speak in Hindi also. तो confusion नहीं रहता है. So Prince बिल्कुल हर दिन English में ही बोलेंगे. And हर किसी का यही है. तो गौरव सर अनम्यूट हो गए क्या? मैं आपको करूं क्या? हाँ गौरव सर, हेलो. हेलो. हाँ, तो सर क्या नेक्स्ट सेशन अब स्टार्ट करेंगे 11:50? हाँ 11:50 नेक्स्ट सेशन सर. ओके. सो कैन आई लीव द मीटिंग? हम लोग लीव कर लेंगे. हाँ जी सर. ओके. सो थैंक यू वेरी मच. लीव कर लो. 11:50 में अगेन ज्वाइन कर लेना, रिज्वाइन हो जाने लोग, एंड देन दैट विल बी द क्वेश्चन आंसरिंग राउंड. ओके. थैंक यू. शिक्षण